चलो, so we are just going to discuss motion about stable equilibrium point. ठीक है ना? So हम लोगों ने फेज स्पेस प्लॉट किया, स्टेबिलिटी एनालिसिस देखी, what is stable motion, what is stable equilibrium, what is unstable equilibrium, and what about the motion. ठीक है? So one of the very fundamental motion about the stable equilibrium point is oscillatory motion. First, we will discuss what is oscillatory motion. Then we will go for what is small oscillation, and you can say the small oscillation as a simple harmonic motion. ठीक है? Okay. तो मेरा फर्स्ट फंडामेंटल क्वेश्चन ये है, व्हाट इज कंडीशन ऑफ ऑसिलेटरी मोशन? व्हाट इज कंडीशन ऑफ ऑसिलेटरी मोशन? बताओ क्या है कंडीशन ऑसिलेटरी मोशन का? आप तो बचपन से पढ़ रहे हो. एंड व्हाट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन? सिंपल, मैं आपके पास ऑप्शन देता हूं, सिंपल पेंडुलम और स्मॉल और सिंपल हार्मोनिक, सॉरी दिस थिंग स्प्रिंग मास सिस्टम, स्प्रिंग मास सिस्टम और सिंपल पेंडुलम दोनों है. ओके, वी विल डिस्कस इट कि क्यों मैं ये क्वेश्चन रेज कर रहा हूं. बाय द वे, व्हाट इज कंडीशन ऑफ ऑसिलेटरी मोशन? ऑसिलेटरी मोशन होने के लिए आप कैसे पता चलेगा कि हाँ ऑसिलेटरी मोशन के चांसेस हैं? क्या कंडीशन है बताओ? यस, first obviously restoring force must, first that thing is that motion must be bounded, है ना? मोशन हमेशा क्या होना चाहिए? बाउंडेड होना चाहिए. सो फर्स्ट थिंग इज मोशन मस्ट बी बाउंडेड. What is meaning of motion must be bounded? Means you have, suppose this kind of situation, suppose this is your turn, suppose this is my potential, something like Vx versus x is my potential. ठीक है? So obviously this region, suppose this is my value of energy, this is my x and this is my value of energy. ये हमारा एनर्जी का वैल्यू है. ठीक है? So obviously this is classical forbidden region, this is also classical forbidden region. This point is turning point and this point is also turning point. So what is bounded motion? When your classical allowed region is bounded by two turning points, है ना? जो क्लासिकल अलाउड रीजन है वो किसके थ्रू बाउंडेड हो? टू टर्निंग पॉइंट्स के अबाउट बाउंडेड हो, देन यू हैव बाउंडेड मोशन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप इसे बाउंडेड नहीं कर सकते हो. सपोज वी हैव डन दिस पोटेंशियल, दिस इज नॉट अ बाउंडेड मोशन. एग्रीड? दिस इज वन साइडेड बाउंडेड मोशन, लेकिन दूसरी तरफ पे जाएगा तो चलता चला जाएगा, isn't it? But what will happen to this energy is that this is a, ये allowed region है या forbidden region है? Forbidden region. This one is allowed, this one is forbidden. So obviously this is not a bounded motion because the forbidden region है, particle तो यहाँ हो ही नहीं सकता है. This is also, sorry, this is allowed region. ये allowed region है, but this is one side bounded. But what will happen? Your particle is bounded into this region. Okay? The particle is bounded into this region because these 2 points are what? Turning points. ये दोनों point क्या है हमारे? Turning point, where momentum is 0. So particle will collide it, rest at few seconds and after then turn back. So this is turning point. So जब भी आप bounded motion की बात कर रहे हो तो bounded motion कहने का मतलब है classical allowed region must be bounded between two turning points. ठीक है? So this is not enough for the oscillatory motion. For example, particle in a box, bounded motion या unbounded motion? Bounded motion है ना? लेकिन क्या है? Oscillatory motion है? No, this is not a oscillatory motion. ठीक है? Obviously, they can be periodic. So bounded motion can be periodic. So every periodic motion is not a oscillatory motion. है ना? कोई भी periodic motion हमेशा oscillatory motion नहीं होगा. For oscillatory motion, what is the prime concern? The oscillatory motion, first you have to check this should be bounded such that it can do the to and fro motion.
है ना, जो कि आपने पढ़ा होगा कि द टू एंड फ्रो मोशन, दिस इज ऑल अबाउट पीरियोडिसिटी, जा रहा है और वापस आ रहा है ना. बट द सेकेंड पॉइंट इज वेरी इंटरेस्टिंग, एंड दिस इज ऑल अबाउट यू नीड रेस्टोरिंग फोर्स. कैसा फोर्स चाहिए? रेस्टोरिंग फोर्स. What is restoring force? Restoring force F x is proportional to negative of any function of x. ठीक है, any function of x, fx must be negative and it may be some force fx. This will be some force, या फिर आप अभी तत्काल में ऐसा लिख देता हूं, x to the power n type of thing. डिस्प्लेसमेंट के टर्म में आप इसे लिख सकते हो. ठीक है, so this will be restoring. Who will tell about the restoring thing? This negative sign. Okay, so this will tell you all about the restoring forces. This is in general oscillatory motion. ठीक है, कैसी बात हम कर रहे हैं यहां पर? ऑसिलेटरी मोशन की बात कर रहे हैं. यू कैन हैव दिस काइंड ऑफ सिचुएशन. ठीक है, नाउ लुक एट द थिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग. सपोज आई हैव टू टाइप ऑफ पोटेंशियल, और दोनों पोटेंशियल का शेप देखो लगभग एक ही जैसा है ना. देन यू विल अप्रिशिएट व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस. So we have two type of potential, and first potential is very famous potential. Vx is equal to half kx square. This is your harmonic potential. That's a very nice potential, isn't it? And if I want to go for the plot of potential, this is more or less, or this is exactly parabolic, not more or less, this is exactly parabolic in nature. This is Vx versus x. Okay, and suppose I am taking another potential, Vx is equal to 1 by 4 kx to the power 4. Suppose मैं एक अलग पोटेंशियल लेता हूं, Vx is equal to 1 by 4 kx to the power 4. This is another potential. And now if you will see the shape of this potential, this is more or less same. Only ये x 1 यूनिट चेंज होगा तो ये 4 यूनिट चेंज होगा, और ये स्क्वायर के यूनिट में चेंज होगा, एंड दिस विल चेंज इनटू 4 यूनिट, है ना. तो ये शार्पली पोटेंशियल बढ़ता रहेगा, बट नेचर ऑफ पोटेंशियल इज एग्जैक्टली सेम. एंड आई हैव दिस कांस्टेंट k इज ग्रेटर देन 0 इन बोथ द केस. ओके, नाउ यू कैन सी this point is a stable equilibrium point, and this point is also a stable equilibrium point. Now, if I am going to calculate the force, if I am going to calculate the force into this region, then Fx is equal to minus del V upon del x, and that value is minus kx. Yes, and here I have my force that Fx is equal to again minus del V upon del x, and that will be minus kx to the power q. So there are two forces, and you can see here force is also restoring in nature. Here force are also restoring in nature. Are you getting my point? दोनों जगह पर फोर्स क्या है? रेस्टोरिंग है, बिकॉज नेगेटिव साइन है, और फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. दैट्स इट. So that means it is restoring force. Means this point, whenever I will displace the particle either left or right, the force will try to bring this particle towards this point. है ना? यहां भी यही चीज है. You can displace this thing from here, but force will be always try to push this particle into this region. Agreed? So this will be restoring force. Restoring force means what? You are shifting it from equilibrium, but the direction of force will be towards the equilibrium. Either you will shift it right or you will shift it left. The direction will be in towards the equilibrium. This is all about restoring force. Now question is very interesting. Even if these force, look at the parabolic, look at the shape, exactly same. Look at the
equilibrium point x is equal to 0. Yes. Look at the force. Both are restoring, but so both are restoring, so both are oscillatory. This is also oscillatory. This is also oscillatory. But is that both are same thing? Oscillatory है तो दोनों की property क्या same होगी? Suppose I am just going to increase the energy. What will happen to frequency? And if I am also going to increase the energy, what will happen to frequency? Frequency is just about going and coming back. This is just about the time period I am talking about. Are you getting this thing? So here, what you will find, you can solve this equation. This equation is linear equation. Because this is what? Linear in nature, x to the power 1. So this is what? Linear in nature. And this equation is non-linear in nature. ये क्या है? Non-linear. So this is all about non-linear equation. The force is restoring in both cases, but here it is linear and here it is non-linear. So this type of oscillatory motion is actually simple harmonic motion. इसे क्या कहते हैं? Simple harmonic motion. ठीक है? And now in this type of motion, this is oscillatory but not simple harmonic motion. Okay? This is oscillatory but not simple harmonic motion. Why not? Because your frequency here will be constant. यहां जो frequency होगी वो क्या होगा आपका? Constant होगा. For the SHM. जब लीनियर फोर्स है और रेस्टोरिंग फोर्स है तो आपकी SHM की जो ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी आपकी? कांस्टेंट होगी. बट हियर दिस विल बी नॉट कांस्टेंट. दिस विल एक्चुअली फंक्शन ऑफ एनर्जी और एम्पलीट्यूड. दिस विल एक्चुअली फंक्शन ऑफ एनर्जी और एम्पलीट्यूड. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये क्या होगा? फंक्शन ऑफ एनर्जी और एम्पलीट्यूड का होगा. ये मीन्स यहां एनर्जी को चेंज करते जाओ, फ्रीक्वेंसी चेंज होती जाएगी. यहां पर एनर्जी को चेंज करते जाओ, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी. नाउ कम टू सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड योर सिंपल पेंडुलम. अब सिंपल हार्मोनिक मोशन इन अ आइडियल केस मीन्स स्प्रिंग का कोई भी मास नहीं है, there is not any friction. This is a typical ideal case. What will happen? Every time, whatever the extension you are doing, ये कर लो या ये कर लो या यहां तक लेते जाओ. Are you getting? This is ideal spring. Every time you have simple harmonic motion. Are you getting my point? Every time you have simple harmonic motion, because every time whatever it be the extension, the force is proportional to x. I am just saying this is my x is equal to 0. जो भी है यहां पर ये, यहां पर ये, यहां पर आप हर केस में x को क्या कर सकते हो? स्मॉल ही मान सकते हो, है ना? कोई भी एनर्जी देखो, whatever energy you are taking, this is oscillatory in motion. ठीक है? But when you are going for the simple pendulum, then what is equation of motion of simple pendulum? The equation of motion of simple pendulum, we have Lagrangian. What is Lagrangian of simple pendulum? That is ml square theta dot square plus mgl cos theta, and I have this type of situation, है ना? This is my angle theta. I have this type of situation, and this is the angle theta. You can have this relationship, and the equation of motion is d upon dt del L upon del theta dot minus del L upon del theta is equal to what? 0. ठीक है? And now you have ml square theta double dot
plus mgl sin theta is equal to 0, and here theta double dot is equal to g upon L sin theta. This is actually non-linear equation. This is actually non-linear equation, and you cannot solve it directly. But what you can do it for the small oscillation. Are you getting my point? You can do it for the small oscillation, and what you can do it for the small oscillation is all about, you can just assume your theta is very small in comparison. Your theta is the significant value, and theta square, sorry, इसमें कौन आएगा? Theta cube, theta 5, all are what? Very small, and you can neglect. ये assumption है कि आपका significant value जो है वो about theta है. समझ रहे हो क्या मैं कह रहा हूं? When you have this kind of situation, when you have theta double dot plus g upon L theta, and I have sin theta is equal to theta minus theta cube by factorial 3 plus theta 5 by factorial 5. What is assumption behind this? Sin theta is equal to theta. What is assumption behind this? That you can neglect the unharmonic term. Unharmonic term means what? More than square term, or just you can neglect the, and you can accept only this as a significant term. Only this as a significant term. So for one particular approximation, you can use simple pendulum as a simple harmonic motion. एक पर्टिकुलर एप्रोक्सीमेशन के लिए ले लेते हो. समझ में आ रहा है? ये हमेशा आप नहीं यूज कर सकते उसे स्मॉल ऑसिलेशन, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए इन आइडियल केस you can use every time as a simple harmonic motion. So this is the best example for simple harmonic motion. A simple pendulum is not a best example for simple harmonic motion. For one particular approximation, it is the one of the good example for simple harmonic motion. समझ में आ रहा है? अब सपोज करो किसी ने ये कहा कि नहीं भाई, I want more precise result. I want more precise result. एंड मेरे लिए थीटा क्यूब जो है वो अच्छा नंबर है, जो भी आप वैल्यू ले रहे हो थीटा के लिए, एंड आई कैन नेग्लेक्ट दिस थीटा 5 टर्म, बट आई कैन नॉट नेग्लेक्ट दिस थीटा क्यूब टर्म. देन योर इक्वेशन ऑफ मोशन इज बेसिकली g upon L theta minus theta cube by factorial 3 is equal to 0, and this is horrendous equation. This is again non-linear. Now, ये जैसे ही non-linear हो जाएगा, और फिर आप जब यहाँ पर एंगुलर ऑसिलेटरी मोशन कैन बी देयर, हो सकता है, बट थिंग इज दैट जैसे ही ये non-linear हो जाएगा तो आपकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं रहेगी. फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? आपके एम्पलीट्यूड या एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट होने लगेगा. ठीक है? Agreed? So it will dependent on energy or amplitude. So what we can have, हमारे पास अब चैलेंज क्या है? अगर अब इन जनरल देखो प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मैथमेटिकल सॉल्यूशन की प्रॉब्लम. एनालिटिकली आप कैसे सॉल्व कर पाते हो चीजें? कंप्यूटेशनल से तो सॉल्व कर ही सकते हो, बट हमारे लिए जो मेन चैलेंज है, हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट एनालिटिकली. सो व्हेन वी वांट टू सॉल्व इट एनालिटिकली, then obviously we just want to solve for the small oscillation part or for the simple harmonic part. तो उसके लिए हमें क्या इंश्योर करना पड़ेगा? That force must be proportional to minus displacement. ये हमें इंश्योर करना पड़ेगा. तो उसके लिए पोटेंशियल को कैसा होना पड़ेगा? पैराबोलिक इन नेचर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो हम क्या करते हैं, कोई भी ऑसिलेटरी मोशन, फर्स्ट ऑसिलेटरी तो होना ही चाहिए. ऑसिलेटरी मींस व्हाट? ऑसिलेटरी मींस बाउंडेड मोशन अबाउट व्हिच पॉइंट? स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट. मीन पोजीशन नहीं, दैट इज स्टेबल
इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है, स्टेबल और अनस्टेबल। अनस्टेबल के अबाउट आपका नहीं होगा, इमेजिनरी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी अनस्टेबल के अबाउट अगर आप फ्रीक्वेंसी चेक करोगे तो। वी विल चेक। नहीं तो आपको पैराबोलिक टर्म तक थीटा को ले जाना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब देखो, वेरी गुड, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। और इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। गुड, ये आगे भी काम आएगा, तो इसको अभी ही देख लेते हैं। देखो क्या है, व्हाट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन? बेस्ट एग्जांपल ऑफ ऑसिलेट्स, स्मॉल ऑसिलेशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन, स्प्रिंग मास सिस्टम, है ना? बेस्ट एग्जांपल है ये हर एक एनर्जी के लिए स्मॉल ऑसिलेशन करेगा फॉर द आइडियल केस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऑब्वियसली तो मास लगा दो और भी कंस्टेंट डाल दो तो प्रॉब्लम हो सकती है, बट इन आइडियल केस व्हेन स्प्रिंग इज मासलेस, उसके केस और देयर इज नॉट एनी फ्रिक्शन, इट विल ऑलवेज डू स्मॉल ऑसिलेशन व्हाटएवर द एक्सटेंशन इज देयर। ओके, सो व्हाट इज हैमिल्टोनियन हियर? द हैमिल्टोनियन इज नथिंग px square upon 2m plus half k x square। ठीक है? So what you have to ensure? You have to ensure that your kinetic energy part should be px square, है ना? The kinetic energy part should be px square, or you have kinetic energy is proportional to xi dot xj dot। Are you comfortable? है ना? एक से ज्यादा भी हो सकता है, क्या कि जैसे ही आपने देखा होगा मूविंग पेंडुलम में, सो मूविंग पेंडुलम में क्या था, थीटा 1 डॉट x डॉट, तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट, एंड दिस इज नथिंग बट द जनरलाइज कोऑर्डिनेट। सो आई कैन राइट, और आप इसको जनरलाइज कोऑर्डिनेट के भी टर्म में दे सकते, क्यू आई डॉट क्यू जे डॉट के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ऑब्वियसली ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी के लिए तो आप 100%। अरे सुन तो लो, सुन तो लो। एंड व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी? फॉर आइडियल स्मॉल ऑसिलेशन काइनेटिक एनर्जी का ये होना चाहिए, जो इन जनरल आप कह रहे हो सब जगह होगा। ओके, आई एम एग्रीड। व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बिहेव लाइक एक्स स्क्वायर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मीन्स पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी लाइक एक्स आई एक्स जे और क्यू आई क्यू जे। दिस इज कंडीशन ऑफ अ स्मॉल ऑसिलेशन फॉर द पोटेंशियल। अगर ये कंडीशन नहीं होता है तो आप स्मॉल ऑसिलेशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन के रिजल्ट्स को यूज नहीं कर सकते। मे बी दैट कैन बी ऑसिलेटरी, मे बी दैट कैन बी ऑसिलेटरी, बट इट इज नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। देन इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज नॉट कांस्टेंट। और ये किसके अबाउट होगा ये मोशन? स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबाउट। ठीक है? जैसे कल की क्लास की मैं बात कर रहा हूं, हम लोगों ने एक पोटेंशियल देखा था, देयर वाज वन पोटेंशियल, याद है ये पोटेंशियल, है ना? और इस पोटेंशियल का ये जो पार्ट था दैट इज -1/4 एंड दिस इज 0। एग्रीड? और ये पॉइंट क्या था? +1, दिस इज -1 एंड दिस इज +1। एग्रीड? ये दोनों क्या था? स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, है ना? सो आपका पार्टिकल कब तक स्मॉल ऑसिलेशन करेगा? जब तक आप इस वैली में हो, क्योंकि वहां मोशन किसके अबाउट हो रहा है? वो व्हाट इज सिग्निफिकेंट पॉइंट? दिस वन इज सिग्निफिकेंट पॉइंट। मोशन किसके अबाउट हो रहा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबाउट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये भी आप इसमें इस वैली में भी हो तो आप क्या करोगे? स्मॉल ऑसिलेशन की तरह कर सकते हो, बिकॉज मोशन बाउंडेड मोशन अबाउट स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। But suppose I am taking this value of energy and I just want to check motion about this equilibrium point. Bounded तो है, periodic तो है, लेकिन क्या ये small oscillation है? अगर मैं इसे significant point कर रहा हूं और बोल रहा हूं कि मोशन इसके about हो रहा है, तो क्या small oscillation होगा ये? No, it will be not a small oscillation because this point is what? Unstable equilibrium point. ठीक है?
सो आपके लिए अब जो चीजें समझने वाली बात है वो क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट मोशन शुड बी बाउंडेड एंड इट शुड बी अबाउट स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। बाउंडेड मोशन तो हो लेकिन किसके अबाउट हो? स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। देन इट इज ऑसिलेटरी। लेकिन आप अगर इसे चाहते हो कि दैट इट शुड बिहेव लाइक अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, देन योर पोटेंशियल मस्ट बी सिग्निफिकेंट अप टू विच ऑर्डर? एक्स स्क्वायर ऑर्डर और हार्मोनिक ऑर्डर तक। एक्स स्क्वायर वाले पार्ट को ही क्या कहते हैं? हार्मोनिक। और उससे ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? अनहार्मोनिक टर्म। सो यू कैन नेग्लेक्ट द ऑल अनहार्मोनिक टर्म and you can assume the motion is what? Simple harmonic motion, and that is also known as small oscillation. ठीक है? So let's create a theory for the small oscillation. तो किसी भी पोटेंशियल को आप अप्रोक्सीमेट कर सकते, अगर उसमें ऑसिलेटरी मोशन है तो आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हो फॉर द स्मॉल ऑसिलेशन। क्लियर है ये? किसी भी पोटेंशियल को, जो आपके एग्जाम का एक फेवरेट क्वेश्चन हमेशा से रहता है ना? सो लेट्स गो फॉर दिस। हम्म, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? आपको देखना पड़ेगा कि आप कैसे इसको यूज कर रहे हो। अभी देखते हैं, तुम्हारे पोटेंशियल ले लेंगे, सारे पोटेंशियल को ले सकते हैं। वो होगा ऑसिलेटरी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हें उसे ऑसिलेटरी बनाना है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक बना लो, कुछ भी कर लो, आप सिंपल फंक्शन के थ्रू देख सकते हैं। लेट्स क्रिएट अ थ्योरी। आप क्या करोगे? आपके पास एक पोटेंशियल है वी एक्स, एंड व्हाट इज एक्स नॉट? स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। एक्स नॉट इज व्हाट? स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। So this is your Vx. You can do the Taylor expansion, and Taylor expansion is really one of the beautiful part of mathematics, जो कि हम फिजिक्स वाले हमेशा उसका यूज करके अपना काम आसान कर लेते हैं। So this is the first term. Yes. What will be second term? Del v upon del x at x is equal to x naught, x minus x naught. ठीक है? What is the third part? Del square v del x square x is equal to x naught, x minus x naught whole square, and half will be also there, and plus order of x minus x naught whole cube। उसके ऑर्डर का होगा, है ना? हमें जहां तक काम है वही तक लिखते हैं। नाउ दिस विल बी सम कांस्टेंट वैल्यू। सो कांस्टेंट वैल्यू का तो फोर्स पर कोई भी यूज नहीं होगा। ठीक है? व्हाट अबाउट दिस पॉइंट? सीखा क्या होगा ये ये क्या होगा? जीरो। वाई जीरो? Because this is equilibrium point, a stable equilibrium point. So this value is 0. What will be this value? Positive, because second order differentiable. So this value is what? Positive. So you have half k x minus x naught whole square. ठीक है? Now, and what we can do for the simple harmonic motion or a small oscillation, what we can do? We can ignore this term because we assume x minus x naught is very small. समझ में आ रहा है? यहां तक की चीजें को हम सिग्निफिकेंट मान रहे हैं, बट हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि x माइनस एक्स नॉट जो है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, बहुत ही ज्यादा छोटा है, और इसके कारण ये क्या कर सकते हैं? दिस टेंड्स टू 0। भाई जैसे साइन थीटा को आपने थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 लिखा, उसमें साइन थीटा इक्वल टू थीटा कब मानते हो? जब ये सारा चीज को बहुत छोटा मानते हो, है कि नहीं? एग्रीड? उसी तरह से यहां पर मैं स्क्वायर वाले टर्म को स्मॉल मान रहा हूं, तो उसके ऊपर वाले टर्म को तो बहुत छोटे हो जाएंगे ना, है ना? हाँ, सेकंड टर्म जीरो कैसे हुआ? इक्विलिब्रियम पॉइंट है। del v upon del x is equal to 0, that is all about equilibrium point।
ठीक है, और ये पॉजिटिव है, दिस के इज व्हाट, ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर, क्योंकि किसके अबाउट आप देख रहे हो, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबाउट. And this whole term and this term we can neglect because this is very small compared to this one. करे छोटा बड़ा क्या होता है, तो कंपैरिजन का बात है, किसके रेस्पेक्ट में ये बहुत छोटा है, x माइनस एक्स नॉट के स्क्वायर के रेस्पेक्ट में ये बहुत छोटा है. ओके, एंड देन you can approximate your potential Vx is equal to V naught plus half k x minus x naught whole square. क्लियर है ये? एंड प्लीज ये सारा हम कब कर रहे हैं, व्हेन वी आर डूइंग द टेलर एक्सपेंशन. आप पोटेंशियल में नहीं किसी टर्म को हटा दोगे, आफ्टर डूइंग टेलर एक्सपेंशन यू विल डू दिस थिंग. क्लियर है ये? सो दिस इज माय थिंग. नाउ व्हाट इज योर फोर्स, योर फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस एक्स नॉट. व्हाट इज योर फोर्स इज लीनियर. सो आप बेसिकली जब फोर्स रेस्टोरिंग हो और आप उसे लीनियर बना पाते हो, when your force is restoring and you can make it linear, then you have a small oscillation. Now what will be angular frequency, root under k upon m. ये तो होता है. और what is value of k, the value of k is equal to del square v del x square at x is equal to x naught by m. क्लियर है ये? सो दिस इज ऑल अबाउट स्मॉल ऑसिलेशन. सो आपको अगर कोई भी पोटेंशियल दिया है और मोशन कह रहा है कि स्मॉल ऑसिलेशन है, ये मैं कह रहा हूं कि स्मॉल ऑसिलेशन है, इसका मतलब क्या है कि आप ये सारे टर्म को क्या कर दो, पोटेंशियल में नेग्लेक्ट कर दो. और फोर्स में किसे नेग्लेक्ट करोगे, स्क्वायर वाले टर्म को. ठीक है, फोर्स में आप क्या करोगे, स्क्वायर वाले टर्म को नेग्लेक्ट करोगे. पोटेंशियल में किसे नेग्लेक्ट करोगे, क्यूब वाले टर्म को नेग्लेक्ट करोगे. ठीक है, तो ही आपको स्मॉल ऑसिलेशन मिल सकता है. सो नाउ यू हैव वन ब्यूटीफुल फॉर्मूला, है ना. क्या होगा, के निकाल लो, ओमेगा की वैल्यू निकाल देगा. अगर वो स्मॉल ऑसिलेशन है तो एग्जाम में क्या देगा, कोई भी एक पोटेंशियल देगा एंड इट विल डू अ स्मॉल ऑसिलेशन. इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्योंकि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए ये वाला पॉइंट की वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा. एंड दैट वैल्यू इज ओमेगा इज व्हाट, इमेजिनरी, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. सब स्टेबिलिटी एनालिसिस से ही आ रहा है ना. जो भी मैंने पोटेंशियल एनालिसिस किया था सब वहीं से हम लोग काम कर रहे हैं और उसी चीज को देख रहे हैं. ओके, सो लेट्स गो फॉर वन प्रॉब्लम. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, है ना. सो वी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स टू दावर 4. बी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स टू दावर 4, यानी ये पोटेंशियल दिया हुआ है आपका. ठीक है, सॉरी एक्स स्क्वायर ही कर दो, एक्स टू दावर 4 मत करो, एक्स स्क्वायर ही कर दो. ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर. ठीक है, ये पोटेंशियल दिया हुआ है वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव, ए एंड बी आर पॉजिटिव. ठीक है, if a particle of mass m, if a particle of mass m execute simple harmonic motion, देखो दे दिया है सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसका मतलब क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी. पोटेंशियल का कहां तक लेना है, स्क्वायर टर्म तक. फोर्स कहां तक लेना है, लीनियर टर्म तक. आर यू गेटिंग दिस थिंग. जैसे ही मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा तो ये सारे कंडीशन अपने आप आ गए. ठीक है, एक्सिक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन
find the frequency. Find the frequency. Find the frequency of oscillation. क्या करना होगा आपको? अब पहले क्या निकालना पड़ेगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, और फिर क्या निकालना पड़ेगा? के, और के की वैल्यू क्या है? ऑब्वियसली डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट. एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट. ठीक है. सो क्या आ रहा है वैल्यू? सो फर्स्ट डेल वी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0, यहीं से इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा. सो क्या हो जाएगा? 2ax माइनस 2b एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0. सो x टू द पावर 4 इज इक्वल टू व्हाट? b बाई a, है ना. अब प्लस माइनस b बाई a लिख सकते हो. दो इमेजिनरी होगा, दो रियल सॉल्यूशन होगा. ठीक है. नाउ लेट्स गो फॉर सेकेंड ऑर्डर. डेल स्क्वायर v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, व्हाट विल बी दिस वैल्यू? 2a प्लस 6b टू द पावर x टू द पावर 4, है ना. ये प्लस हो या माइनस हो, दोनों के लिए b बाई a पुट करेंगे. व्हाट इज दिस वैल्यू? 8a, है ना. What is this value? We have to calculate del square v upon del x square at x is equal to x naught, and this is value of x naught actually. So this is 8a. What is your angular frequency? Obviously k upon m. K is this value. So this value 8a upon m. Simple. ठीक है. कई बच्चे ये करते कह रहे इसे नेग्लेक्ट कर दो. अरे स्मॉल करोगे तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसे कैसे नेग्लेक्ट कर दोगे? है ना. तो ऐसा कुछ नहीं होगा. Agreed? After doing Taylor expansion, you will neglect the harmonic term. ऐसा आप कर पाओगे. क्लियर है ये? ओके. तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है. किसी भी पोटेंशियल को कहां ऑसिलेटरी बना रहे हैं? अगर उसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा तो ही होगा भाई. देखते हैं क्या पोटेंशियल है तुम्हारा, बताओ भाई. ये बोल रही है Vx इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर को आप चेक कीजिए ऑसिलेटरी मोशन के लिए क्या होगा. ठीक है. सो पहले देख ले इक्विलिब्रियम पॉइंट है कि नहीं. इसके लिए क्या होगा? 1 प्लस 2x. ठीक है. x की वैल्यू क्या होगी? -1/2. एंड सेकेंड डेल स्क्वायर v डेल एक्स स्क्वायर, ये देख लेते हैं क्या होता है. क्या हो जाएगा ये? 2x, 1 प्लस 2x ना. हाँ 2 रहेगा, ओनली 2 रह रहा है. सो ऑब्वियसली देयर में बी चांस दैट इट मे बी स्मॉल ऑसिलेशन, है ना. सो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू? सो यहाँ तो एक्स स्क्वायर है ही, तो इसको आप क्या कर सकते हो? जस्ट इसको प्लॉट करो, प्लॉट करके देखते हैं क्या मिलता है हमें. जस्ट प्लॉट इट. एक्स प्लस एक्स स्क्वायर को प्लॉट करो. एक्स इज इक्वल टू हाफ पर क्या आ रहा है ये? व्हाट विल वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू हाफ? हाफ प्लस 1/4, तो कितना आ जाएगा ये? 3/4. सो कुछ ऐसा होगा आई थिंक. हाँ ऐसा ही होगा. सो ऑब्वियसली आप देख सकते हो इसको. अदरवाइज आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो. कितना आ रहा है? सॉरी माइनस हाफ. सो दिस विल बी व्हाट? माइनस हाफ. क्या होगा वैल्यू? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, दिस विल बी व्हाट? ऐसा है ना. 1/-हाफ प्लस 1/4 क्या आ रहा है ये? माइनस हाफ. सो वी एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ. सो कुछ ऐसा आएगा ये. x इज इक्वल टू माइनस हाफ पर ये माइनस हाफ, ऐसा कुछ आएगा, है ना. दिस वैल्यू इज समथिंग लाइक दिस, -1/4. हाँ दैट इज -1/4. सो इस तरह से आएगा Vx वर्सेज x. ठीक है. अब आप इसको चाहो तो परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो.
परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो क्या होगा, देख लेते हैं। बी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, है ना। सो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे ही करेंगे ना। सो तो इसको लिख सकते हैं 2 × x इंटू 1/2, यही तो है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस 1/4 माइनस 1/4, यही है। सो ये क्या हो गया आपका, बी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/4, यही तो है। ठीक है, अब आप इसको स्मॉल ऑसिलेशन के साथ देखना चाहते हो, है ना। स्मॉल ऑसिलेशन इसे बनाना चाह रहे हो आप, यही तो करना चाह रहे हो। तो स्मॉल ऑसिलेशन के लिए आप चाहो तो आप इसको ये कर सकते हो, हाफ के एक्स स्क्वायर के टर्म के लिए, इसी के लिए तो ओमेगा की वैल्यू रूट अंडर के अपॉन है ना। तो इसी के लिए के अपॉन एम है, तो यहां पर हाफ को बाहर लेकर के जाओ, है कि नहीं। सो हाफ को लेकर के जाओगे तो क्या आएगा, 1/2 × 2, है ना। एग्रीड। सो यहां पर ओमेगा की वैल्यू क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यही है ना। यही तो होता है, आप जनरल इक्वेशन देखो ना, वी एक्स इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सो व्हाट इज ओमेगा, क्या √2 आ रहा है, हाँ, यहां से भी √2 आ रहा है। ठीक है, मतलब हाँ, तो यहाँ तो है ही एक्स स्क्वायर तक। क्या है ये जो लिया, हाँ हाँ, अरे टेलर एक्सपेंशन के बाद वहां तक जा रहा है भाई, टेलर एक्सपेंशन से भी तो करके दिए दिया, आंसर तुम्हारा सेम आ रहा है। और तुमने परफेक्ट स्क्वायर करके भी तो आंसर तुम्हारा सेम ही आ रहा है। भाई ये तो परफेक्ट स्मॉल ऑसिलेशन, इसमें तो टेलर एक्सपेंशन की जरूरत ही नहीं है, इसके लिए टेलर एक्सपेंशन की जरूरत है। आप टेलर एक्सपेंशन करो तो स्क्वायर वाला टर्म क्या आएगा, यही 8a आएगा, उसका कोफिशिएंट। आप फंडामेंटल नहीं समझ रहे हो, फंडामेंटल क्या है, फंडामेंटल ये है कि किसी भी ऑसिलेटरी ऑसिलेशन मोशन को आप आप उसे स्मॉल ऑसिलेशन में कन्वर्ट कर सकते हो अप टू वन अप्रोक्सीमेशन। और वो अप्रोक्सीमेशन क्या है, वो अप्रोक्सीमेशन ये है कि पोटेंशियल को आप स्क्वायर के टर्म में ले जाओगे, दैट मींस फोर्स आपका लीनियर हो जाए। ये आपकी अपनी चॉइस है, मजबूरी है। अदरवाइज तो इसका फोर्स तो बहुत ही खतरनाक फोर्स से सॉल्व ही नहीं होगा, कौन सॉल्व करेगा इसे। एफ एक्स को अगर मैं दे दूं -2ax माइनस b/x³ जरा सॉल्व करके दिखाओ तो इसे। भाई ए और बी जो भी हो, अब इसको सॉल्व करना, x³ है भाई यहाँ पर, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, नीचे 1/x³ है, इतना आसानी से सॉल्व करना। तो आप क्या कर रहे हो, आप एक अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू दे रहे हो कि भाई चलो एक अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेशन में इसे आप थोड़ी नेग्लेक्ट कर दोगे। आफ्टर एक्सटेंशन, आफ्टर डूइंग टेलर एक्सपेंशन, यू विल नेग्लेक्ट दिस थिंग। समझ रहे हो, बच्चे ये गलती करते हैं कि भाई ये वाला पार्ट ले लिया, इसको नेग्लेक्ट कर दो, ये थोड़ी आप करोगे ये। तुम सॉल्व करके दे दो मुझे। कहाँ एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हाँ तो एक्स स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये कौन सा मैथमेटिक्स है भाई, ये क्लास 8 की मैथमेटिक्स नहीं है जो तुम कर रहे हो, जोड़ घटाओ गुना भाग, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो। आपको मैं एक इंटेंस बातें बता रहे, आप कहां फंसे हुए हो।
मैं बोल रहा हूं कि नॉन लीनियर इक्वेशन एनालिटिकली नहीं सॉल्व कर सकते हो, आप कंप्यूटर पर जाके सॉल्व करना इसे, तो भी नहीं मिलेगा इसका सॉल्यूशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नहीं मिलेगा सॉल्यूशन, आप इसको तो सॉल्व ही नहीं कर सकते यार। इसको सॉल्व करके दिखाओ मुझे, जाओ जाकर के बैठो जाके किसी भी कंप्यूटर से। समझ रहे हो प्रॉब्लम कहाँ है? आप फिजिक्स इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको किसी चीज का सॉल्यूशन लाना है, और आप यहां अब जैसे यही क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। जस्ट अ मिनट, ये क्वेश्चन करो। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस माइनस एक्स फोर बाई फोर, ये है ना? दिस इज वी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स फोर बाई फोर। तो इसमें क्या करोगे, एक्स फोर को नेग्लेक्ट कर दोगे? हाँ, और बोलोगे कि अब हम इसको इसको लेकर के काम कर लेंगे, ऐसे फिजिक्स होता है? व्हाट यू हैव टू डू, you have to just go for the Taylor expansion of all function। आप इसके जो इसका सॉल्यूशन, इसका जब प्लॉट करोगे तो क्या आएगा, देखो समझने की कोशिश करो क्या आएगा। इसका प्लॉट करेंगे तो क्या आएगा, लास्ट क्लास में किया था, कैसा प्लॉट था? एम की तरह प्लॉट था, है ना? एक्स इजिकल टू जीरो पर कितनी वैल्यू आ रही है, 1/4। सॉरी, एक्स इजिकल टू जीरो पर जीरो, और एक्स इजिकल टू प्लस माइनस वन पर 1/4, है ना? तो ये कैसा आ रहा था, ऐसा आ रहा था ना? यही कर्व होगा इसका, है ना? यू कैन चेक इट, यू कैन चेक इट। del v upon del x is equal to 0, x is equal to, sorry, that means x minus x cube is equal to 0, so x is equal to 0, x is equal to plus minus 1, ठीक है? और सेकंड कर्व कर लेते हैं, del स्क्वायर v del x स्क्वायर 1 माइनस 3x स्क्वायर, यही है। x is equal to 0 पर क्या है, पॉजिटिव, और बाकी जगह पर नेगेटिव। नाउ अब देखो यहां पर क्या हो रहा है और हम कर क्या रहे हैं, px x। यहां पर स्मॉल ऑसिलेशन, सपोज पार्टिकल की मास m है, m इज इक्वल टू 1, ठीक है? सो आपको क्या करना है, फॉर द स्मॉल ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी निकालना है। सो व्हाट विल बी फ्रीक्वेंसी, सो व्हाट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट हियर, 0। सो यू हैव टू फाइंड del स्क्वायर v del x स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 0, दिस इज योर वैल्यू ऑफ k। और यहां पर जब आप देखोगे तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, ये 1 वैल्यू आ रही है। और व्हाट इज योर फ्रीक्वेंसी, योर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रूट अंडर k अपॉन m, मैंने मास को 1 लिया है, दैट वैल्यू इज इक्वल टू 1/1। क्लियर है? अब ये हो क्या रहा है भाई, व्हाट इज मीनिंग ऑफ अप्रोक्सीमेशन, मीनिंग ऑफ अप्रोक्सीमेशन दैट यू कैन अप्रोक्सीमेट होल पोटेंशियल जस्ट लाइक दिस पार्ट, इस पार्ट की तरह आप पूरी की पूरी पोटेंशियल को अप्रोक्सीमेट कर रहे हो, तभी स्मॉल ऑसिलेशन है। पैराबोला कहां तक नजर आ रहा है तुम्हें, सारी जगह तुम्हें पैराबोला नजर आ रहा है? हाँ, ओनली अबाउट दिस पार्ट, ओनली अबाउट ये जो पार्ट है, इसको भी आप अप्रोक्सीमेट कर रहे हो बाय द टेलर एक्सपेंशन। अब आप जो भी इसको करोगे, जब आप इसका टेलर एक्सपेंशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस 1/2 डेल स्क्वायर वी डेल एक्स स्क्वायर एक्ट इक्वल टू एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर, प्लस ये सारे टर्म को जब आप नेग्लेक्ट कर रहे हो, आर यू गेटिंग दिस थिंग? तो ये जब ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस वैल्यू इज 0, ये वैल्यू भी 0 है, एक्स इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, 0 है। तो आपने जिसे कंपेयर किया वो क्या आ रहा है, हाफ, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, x माइनस 1
होल स्क्वायर, ये कहां पर आपको मिल रहा है, किस अप्रोक्स, x माइनस जीरो, सो दैट वैल्यू इज x माइनस जीरो। इसका जो प्लॉट करोगे तो वो कौन सा प्लॉट है, लगभग ये वाली प्लॉट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस पूरी पोटेंशियल में ये रीजन में आप स्मॉल ऑसिलेशन अप्रोक्सीमेट कर सकते हो व्हेन योर पार्टिकल हैव दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एनर्जी एंड योर पार्टिकल इज इन दिस रीजन। इस वैल्यू ऑफ एनर्जी के लिए इस रीजन में थोड़ी स्मॉल ऑसिलेशन होगा, ऑसिलेटरी ही नहीं होगा। इस रीजन में ऑसिलेटरी मोशन होगा, उसको आप स्मॉल ऑसिलेशन में कन्वर्ट कर रहे हो बाय यूजिंग दिस टेक्निक। ये गलती कभी मत कर देना कि इसे नेग्लेक्ट कर दिए और आंसर आ गया यहां से। ओके, इस तरह की गलतियां आप करोगे तो एकदम ही खत्म हो जाएगा चीज। बहुत ही डीप रूटेड नॉलेज है ये, है ना। यू आर एक्चुअली इग्नोरिंग अनहार्मोनिक टर्म। इसके अंदर जो अनहार्मोनिक टर्म है सबको मिलकर के एक पोटेंशियल आपको ऐसा दिख रहा है कि नहीं, ये वाला टर्म मिला, ये टर्म मिला, ये टर्म मिला, ये टर्म मिला, तब जाकर के ये पोटेंशियल आपको मिल रहा है ना। और उसमें से आपको ये टर्म उठाना है और उसमें से भी आपको अप्रोक्सीमेट करना है ऑसिलेटरी कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के लिए, जिसे आप स्मॉल ऑसिलेशन कहते हो। क्लियर है ये। अगर इसी में क्वेश्चन पूछे व्हाट विल बी द रेंज ऑफ एनर्जी सच दैट यू हैव स्मॉल ऑसिलेशन, 0 से लेकर 1/4 तक, बट ओनली इनटू दिस रीजन। एग्रीड और नॉट। सो 0 से लेकर 1/4 तक आप स्मॉल ऑसिलेशन कर सकते हो। समझ में आया, है ना। तो ये बेवकूफी मत कीजिएगा, जहां परफेक्ट स्क्वायर बन जाए वहां बन जाए। यहां कहां से परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे भाई, है ना। लेकिन कोई भी पोटेंशियल जहां ऑसिलेटरी मोशन है, जहां स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है और वो बाउंडेड हो पाए जिस एनर्जी के लिए, ऑब्वियसली हर एक एनर्जी के लिए वो बाउंडेड नहीं होगा, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एनर्जी के लिए बाउंडेड होगा, देन यू हैव टू गो फॉर व्हाट, स्मॉल ऑसिलेशन के लिए अप्रोक्सीमेट कर सकते हो। वो अभी आपकी मजबूरी है, क्योंकि आप उसे कंप्लीटली सॉल्व नहीं कर सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट, है ना। सो व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी विल टेक अ ब्रेक, और अभी आप असाइनमेंट 3 निकालो। जस्ट टेक असाइनमेंट 3।